So dear students, the next topic is extremely important. It is known as the dose response curve. The dose response curve. The dose response curve. Okay. So what is a dose response curve? Dose response curve is a graph between the dose of the drug administered, आपने कितनी dose दी है, and the response or the effect of the drug. So a graph between the dose of the drug administered and the response of the drug, whatever we got, is the dose response curve. Right? Now, जो हमारी dose response curve जब भी हम plot करते हैं, so that curve is usually sigmoidal. याद रखना पड़ेगा. The dose response curve, what we call it as the DRC. Very interesting concept. The dose response curve is usually sigmoidal in shape or S shape. अब क्या है प्यारे बच्चों की ये जो कर्व्ड लाइंस है ना, ये ज्यादा अच्छे मैथमेटिकल कंपैरिजंस नहीं दे सकते. यानी कि दो कर्व्ड लाइंस को कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. स्ट्रेट लाइन को तो कंपेयर कर सकते हैं. तो इसलिए हम क्या करते हैं, डीआरसी की जगह लॉग डीआरसी यूज करते हैं. लॉगरिथमिक ऑफ टू डीआरसी. So this is how we evaluate two drugs, log DRC, because this is like a parabola. This sigmoidal curve is like a parabola, so we use log DRC. Okay. So in a dose response curve, what all do you evaluate? You evaluate the potency of the drug. The potency of the drug. First thing which you evaluate in a, believe me, this dose response curve is definitely going to be asked in the exam. और आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप बस ध्यान से मेरी बात सुनना. सो यू इवैल्यूएट द पोटेंसी ऑफ अ ड्रग, you evaluate the efficacy of a drug, you evaluate the efficacy of a drug, and in a dose response curve तीसरी चीज जो आप evaluate करते हो वो है therapeutic index. जो तीसरी चीज आप evaluate कर सकते हो तो dose response curve में थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, that is the therapeutic index. ठीक है. अब दोस्तों, therapeutic index is again a very important concept. This is the ratio of the median lethal dose to the median effective dose. Therapeutic index is the ratio of the median lethal dose to the median effective dose. Okay. Yeah, again, this question is going to be asked in the exam for sure. What is therapeutic index? A ratio of the median lethal dose to the median effective dose. So dear students, what does effective dose mean? Median effective dose कि जब भी आप कोई दवाई देते हो, कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग दें कि 50% लोगों में रोग निदान हो जाए. यानी भी जिस भी चीज के लिए आपने दवाई दी है, 50% लोग ठीक हो जाए. So that is the effective dose. Okay. So whatever concentration of the drug you are giving should cure 50% of the people who are receiving the drug. That is the effective dose. आपको पता है ये जो ड्रग्स वगैरह हैं, ये हम सबसे पहले बिफोर वी इंट्रोड्यूस इन द मार्केट हम एनिमल स्टडीज करते हैं.
है ना। सो गिनी पिग्स यूज करते हैं, माइस यूज करते हैं, और इसके बाद हम जब ट्रायल हो जाता है फिर इंसानों में हम दवाई देनी शुरू करते हैं, फिर इंसानों पे ट्रायल्स होते हैं। सो देर इज अनदर कॉन्सेप्ट नोन एज द लीथल डोज। लीथल डोज है कि कितनी परसेंट हम डोज दें कि दैट शुड प्रोड्यूस डेथ ऑफ 50% ऑफ द एनिमल्स रिसीविंग इट। What dose of the drug should be given that produce death of 50% of the subjects, 50% of the subjects instead of animals? Better it would be, because this is applicable to humans also, that produces death of 50% of the subjects receiving it. अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल आपकी डे टू डे लाइफ का देता हूँ। मान लीजिए आप लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं और आप बहुत कम एलए यूज करते हैं, 0.1 ml। क्या उससे नर्व एनेस्थेटाइज हो जाएगी? शायद हो, शायद ना हो। ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर आप बहुत सारी कार्ट्रिजेस या बहुत सारे वॉयल्स इंजेक्ट करना शुरू कर देते हो इंसान में, तो क्या हो सकता है? टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो हमने क्या करना है, एक सेफ्टी मार्जिन देखना है, इतनी डोज देनी है जो कि एडिक्वेट हो और असर कर सके, एट द सेम टाइम पेशेंट को कोई नुकसान ना हो, टॉक्सिसिटी ना हो। तो वो सेफ्टी मार्जिन कौन मेजर करता है? थेरेपेटिक इंडेक्स। थेरेपेटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द लीथल मीडियन लीथल डोज to the median effective dose. What is the lethal dose? A dose which would bring about death of 50% of the subjects who are receiving it. And what is effective dose? A dose which would cure the problem of 50% of the people who are receiving it. So ये therapeutic index would tell about the safety margin of the drug. दोस्तों अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड बार्बिचुरेट्स। ध्यान से सुनना। There are some drugs like antidepressants and barbiturates which have a very no therapeutic index. Okay. Can you tell me एक English phrase है, a person is less tolerant or a person is short tempered? What does that mean? Less tolerant. Gets angry quickly. So that means that a person would get angry very quickly or he has a no nonsense attitude. ज्यादा nonsense वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सो सिमिलरली कुछ ड्रग्स हैं जैसे बार्बिचुरेट्स हैं, उनका सेफ्टी मार्जिन जो है बहुत ही कम है। यानी कि एक पर्टिकुलर डोज पे वो अपना एक्शन करेंगे, सिडेशन या जो भी आपने करना है, हिप्नोसिस करना है, और उसके बाद बाय चांस अगर डोज बढ़ गई सो दैट कैन बी डेंजरस। तो समझ रहे हो, जो सेफ्टी का मार्जिन है, जो दायरा है, वो बहुत ही कम है। राइट। सो जिन ड्रग्स का सेफ्टी का दायरा कम होता है, यानी कि आप उनको दवाई दे रहे हैं किसी भी इंसान को और सडनली वो टॉक्सिक हो सकती है जब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, सो वो मेजर करता है थेरेपेटिक इंडेक्स। सो जिन ड्रग्स का नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स है, इसका मतलब उनको कॉशन के साथ देना पड़ेगा, ध्यान से देना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि वो टॉक्सिक हो जाए सडनली। ये बात सभी को समझ आ गई? थेरेपेटिक इंडेक्स। अब डोज रिस्पॉन्स कर्व में आपको मैं 3 गुरु मंत्र दूंगा। वो गुरु मंत्र देने से पहले पहले आप समझेंगे कि ये क्या इसका मतलब होता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज पोटेंसी। दोस्तों पोटेंसी समझाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पुरानी कहावत है, उसका मुझे मतलब बताएं। 100 सुनार की, 1 लोहार की। 100 सुनार की और 1 लोहार की, इसका मतलब बताओ। आप सबकी चुप्पी ये बता रही है कि आपको सीरियसली मतलब नहीं पता। हमारे टाइम तो बच्चे बच्चे को ये बातें पता होती थी, जबकि आप लोग स्मार्ट स्कूल्स में पढ़े हुए हो जहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स थे, आपकी क्लासेस एयर कंडीशन थी। हम लोगों की क्लासेस में कोई एयर कंडीशन भी नहीं होता था। पूनम कुछ बोलना चाहती है। पूनम बेटा, आपको पता है 100 सुनार की और 1 लोहार की का क्या मतलब है? अंकिता हाँ कुछ जी बोलना सर, चाहती है। हाँ जी। मतलब कि
जो काम मतलब एक एग्जैक्ट अब देखिए पूनम कितनी काम और कंपोज्ड है ना, बड़ी डेलिकेट सी है, तो प्यार प्यार से समझा रही है सारे डेंटोरिशियंस को कि सर की बात सुन लो, सर की बात सुन लो। बच्चे सुन नहीं रहे, और वहीं पे सर की एंट्री हो जाती है। सर थोड़ा दबका मार के जोर की आवाज में बोलते हैं, बच्चे सारे चुप हो जाते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? 100 सुनार की, सुनार जो गोल्डस्मिथ होता है वो हैमर करता रहता है बार बार। सुनार के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बड़े डेलिकेट होते हैं, ठीक है। वही काम जो लोहार होता है, लोहार समझते हो, ये जो लोहे से डील करते हैं, इतना बड़ा हथौड़ा लेके आता है, एक जोर से चोट मारता है हथौड़े की, और वो सेम चीज अचीव हो जाती है जो सुनार इतनी देर से कर रहा था। राइट? सो इमेजिन करिए कि ये इतनी बड़ी गोली है। दिख रहा है सभी को इतनी बड़ी गोली? ओके। So your voice is not audible. Okay, no problem. Can you all listen to me now? Yes. So Yes, I'll sir. repeat again very quickly. There is a big tablet and it is bringing the fever down. Okay, or it is controlling the cough. Now there is another tablet which is very small in size, but it has the same effect. So which is more potent? The छोटी tablet. पोटेंसी का मतलब है कि कितनी कम से कम हम डोज दें, कितनी कम से कम डोज दें जिससे हमें डिजायर्ड इफेक्ट अचीव हो जाए। बात समझ आ रही है? दोबारा बोल रहा हूं, ये टैबलेट का साइज दिख रहा है, काफी बड़ी है। ये टैबलेट इसके अंदर जो है ये काफी छोटी है। दोनों ने सेम इफेक्ट अचीव किया, दोनों से खराश ठीक हो गई। तो कौन सा ड्रग ज्यादा पोटेंट है? जिसका साइज छोटा है पर वो काम बड़ा कर रहा है। ये बात याद रखोगे। सो इन द लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन द ड्रग विच इज प्रोड्यूसिंग मैक्सिमल इफेक्ट, दैट ड्रग इज मोर पोटेंट। समझ आ गई व्हाट इज पोटेंसी? राइट। नेक्स्ट इज एफिकेसी। एफिकेसी का तो आप लिटरल मीनिंग समझ सकते हो, विच ड्रग हैज बेटर इफेक्ट, दैट इज एफिकेसी। सो अभी जो हम बात कर रहे हैं डोज रिस्पॉन्स कर्व, ये हमें बताती है ड्रग्स की पोटेंसी के बारे में और एफिकेसी के बारे में। कैसे बताती है? आपको गुरु मंत्र दूंगा, लिख लो गुरु मंत्र। आपको 3 गुरु मंत्र दूंगा। अपना नाम लिखना, डियर मानसी, डियर पूनम, जो भी आपका नाम है, डियर ईशा, डियर जसमीत, डियर अंकिता, डियर अभिरूप, वट एवर इज योर नेम, डियर छवि, शायद एब्सेंशिया में है अभी, राइट? जो भी आपका नाम है लिखना है। रूल नंबर 1, the more the drug is on the left side, the more the drug is on the left side, the more potent the drug is. The more the drug is on the left side of the graph, the more the potent the drug is. The more the drug is on the left side of the graph, the more the potent the drug is. Next point, number 2. The higher the curve of the drug, the higher the curve of the drug, or the higher the slope of the drug, the higher the curve or the higher the slope of the drug, the more efficacious the drug is. The higher the curve or the higher the slope of the drug, more efficacious the drug is. तीसरा है, the more flat or more steep the curve is. Third rule, the more curved, so the more flat or the more steep the curve is, the more flat or the more steep the curve is, the drug is having a narrow therapeutic index. The more flat or the more steep a curve is, the drug is going to have a narrow therapeutic index. ये 3 रूल्स पढ़ लो फटाफट से, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दोस्तों, पहला रूल क्या कहता है कि
जो जितना कर्व लेफ्ट साइड पे है ग्राफ के, जितना लेफ्ट साइड पे है उतना ही पोटेंट वो ड्रग होगा। व्हाट इज पोटेंसी? कि कितनी कम से कम डोज में मैक्सिमल इफेक्ट हमें मिल जाए। राइट, तो आपको याद होगा छोटी गोली का और बड़ी गोली का एग्जाम्पल। राइट, जितना लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ पे है उतना ज्यादा पोटेंट है। आवाज सुन रही है मेरी? दूसरा है जितनी ऊंची कर्व है, जितनी ऊंची कर्व है, जितना स्लोप कर्व का ऊंचा है उतना इफेक्टिव ड्रग होगा। तीसरा है कि जितना ज्यादा वो कर्व पैराबोला की जगह स्टीप है, जितना सीधा है, राइट, उतना ही ज्यादा वो अनसेफ होएगा, यानी कि उतना ही उसका थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो होएगा। तो अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मेरी हेल्प करो। ये दो ड्रग्स हैं ए और बी, विच इज मोर पोटेंट आउट ऑफ द टू? सोचो, पहले सोचो, सोचो और फिर बोलो। फर्स्ट थिंक एंड देन आंसर। फर्स्ट थिंक, यस, नाउ आंसर। बोलिए प्लीज। दिख नहीं रहा? अभी दिख रहा है जी? A. The more, yes, very good, because ये लेफ्ट साइड पे है। The more the curve is on the left side, the more the potent is going to be the drug. आना ही आना है, ये क्वेश्चन आना ही आना है। अभी INI-CT देने वाले हो बहुत जल्दी, ये आना ही आना है 100%। अब बताइए कि आउट ऑफ ड्रग ए एंड ड्रग बी विच इज मोर एफिकेशियस? B. बी, बिकॉज आप देख रहे हो थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा है ए से इसकी स्लोप, सो बी इज मोर इफेक्टिव और मोर एफिकेशियस देन ड्रग ए। आउट ऑफ ड्रग ए एंड ड्रग बी हेयर, अगर आप जूम विंडो पे देखेंगे, विच हैज अ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स? B. देख रहे हो सीधी सीधी स्टीप सी चढ़ाई है। सो जितना कोई कर्व स्टीप है, ओके, उतना ही ज्यादा डेंजर है। डेंजर मतलब थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो है। याद है थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो कौन से ड्रग्स में होती है? बार्बिचुरेट्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, इन सब का थेरेपेटिक इंडेक्स बहुत ही नैरो है। सो सडनली जो डोज हो सकती है वो खतरनाक हो सकती है। I hope you have understood this dose response curve. Let's move ahead. So can you tell me what is the therapeutic index, TI? It is the ratio of the median lethal dose. इसको आप कैसे याद रख सकते हो? ये आप याद रख सकते हो निमोनिक टाइल। टाइल याद रखोगे, दिख रही है सभी को फोटो इस समय? टाइल। So therapeutic index is the ratio of median lethal dose, which is the dose required to kill 50% of the subjects who are receiving the drug. Dose required to kill 50% of the subjects who are receiving the drug, divided by the effective dose. Effective dose is that the dose required to produce the desirable effect in 50% of the population. कितनी डोज दें कि 50% of the population को गला ठीक हो जाए, बुखार उतर जाए, whatever desired effect is needed, कितनी डोज 50% पॉपुलेशन में वो काम कर दे। याद रखोगे टाइल। सो therapeutic index, TI is therapeutic index, ratio of the median lethal dose to the median effective dose. अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आगे चलते हैं। सो इट इज द सेफ्टी। रिमेंबर थेरेपेटिक इंडेक्स मेजर्स द सेफ्टी। बड़ा बड़ा स्टार लगा के लिख लो। थेरेपेटिक इंडेक्स सेफ्टी मार्जिन ऑफ द ड्रग बताती है। रेशियो ऑफ द मीडियन लीथल डोज
to the median effective dose. Therapeutic index is the ratio of the median lethal dose to the median effective dose. So these are the drugs which are having a low therapeutic index or a narrow therapeutic index. Warfarin, theophylline, digoxin, anti-epileptic drugs and lithium. Lithium आपको याद है खतरनाक drug used for bipolar disorder. It has a narrow along with antidepressants, even antidepressants. And आपने शायद सुना होगा MAO inhibitors, सुना है monoamine oxidase inhibitors. Even they have a narrow therapeutic index. So these are all the drugs which have a low or a narrow therapeutic index. I hope you have written it down. चलें आगे. So therapeutic index is the ratio of the median lethal dose to the median effective dose. A very important formula will definitely be asked in the exam. दोस्तों अब हम आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डोज रिस्पॉन्स कर्व जिसे हम लॉग डीआरसी बोलते हैं. अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे. करोगे क्वेश्चन सॉल्व? जरूर करोगे. So out of drug A and drug B, which is more potent? A. Why A? Because that is on the left side. Very good. The more the drug is on the left side of the graph, the more potent the drug is. इसको बार बार दिमाग में बिठाओ. जितना ज्यादा लेफ्ट साइड पे होगा उतना ज्यादा वो ड्रग पोटेंट होगा. Very well answered. Out of drug A and drug B, whom do you think is more efficacious? B. Why so? Because it is more curve. The more the graph is having a higher slope, the drug is having a higher slope, the more efficacious the drug is. इतनी बात याद रखोगे? Right? So this was very important. अगर आपको ये बात समझ आ गई तो ये आपने बहुत ही एक important बात एग्जाम के लिए याद कर ली आज. Right? So अब ये वाला सॉल्व करिए. Out of drug A and drug B, which is more potent? A. A, because it is situated at the left side of the Left graph, more on the left side. Which is more efficacious? A. Again, A is more efficacious. Remember, out of these two clinical parameters, potency and efficacy is more important. देखो गोली छोटी बड़ी का तो क्या है, पर इफेक्टिवनेस तो चाहिए ना दवाई की. बड़ी गोली भी हम खा लेंगे, असर होना चाहिए. तो सर की बड़ी पॉइजनस क्लास भी लगा लेंगे, पर हमें समझ आना चाहिए. ठीक है, इतनी भी पॉइजनस नहीं होती मेरी क्लास. मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे. चलो एक न्यूमेरिकल और मेरे को बताओ कि आउट ऑफ ड्रग ए एंड ड्रग बी, whom do you think has a narrow therapeutic index? B. देख रहे हो थोड़ा सा स्टीप है, सीधी सीधी सी कर्व है. सो एज कंपेयर टू द ड्रग ए, बी हैज अ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स. एक आपका INI-CT का क्वेश्चन आज पक्का हो गया है ये, क्योंकि क्वेश्चन आना ही आना है फ्यूचर में, आना ही आना है. आइदर इन नीट, INI-CT, फॉरेन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है. आप कोई भी पेपर खोल के देख लेना. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम आ जाते हैं बड़े एक इंटरेस्टिंग पार्ट पे, फार्मेकोजेनेटिक कंडीशंस.
फार्मेकोजेनेटिक कंडीशंस। फार्मेकोजेनेटिक कंडीशंस का मतलब होता है कि हर इंसान डिफरेंट है और कई बार इंसान की जीन्स ऐसी होती हैं कि किसी पर्टिकुलर ड्रग्स को इंसान डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करता है, राइट। तो कुछ दिन पहले ना वैसे ही मैं ऐसे ज़रा स्क्रॉल कर रहा था, तो एक वो हल्का सा ऐसे ट्रेलर सा देखा, एक पिक्चर आई थी, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, सर्कस। ठीक है, उसमें है रणबीर सिंह जी। रणबीर सिंह जी पता है आपको, दीपिका पादुकोण जी के हस्बैंड है ना। तो उसमें क्या दिखाते हैं कि रणबीर सिंह का डबल रोल होता है और रणबीर सिंह को ना बचपन से बॉडी में ना करंट दौड़ता रहता है। वो ऐसे हाई इंटेंसिटी वायर्स को टच करता है और उसकी बॉडी में करंट दौड़ता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसका एक जुड़वा भाई भी होता है जो बचपन में कहीं खो जाता है कुंभ के मेले में, राइट। सो उसके जुड़वा जब भी वो वायर्स को टच करता है, जो फर्स्ट भाई है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर दूसरा भाई करंट के मारे नाचना शुरू कर देता है जहां पर भी वो होता है, राइट। So what I'm trying to tell you here is that people with different genetic makeup respond differently to different drugs. So one of the examples is acetylator polymorphism. आपको याद है मेटाबॉलिज्म में हमने दो रिएक्शन पढ़े थे, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में क्या होता था, फंक्शनल ग्रुप अटैच होता था, फेज 2 में कॉन्जुगेट अटैच होता था। फेज 1 में ड्रग क्या हो जाता था, लिपिड सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल। फेज 2 में क्या हो जाता था, वाटर सॉल्युबल और लिपिड इनसॉल्युबल। फेज 1 के रिएक्शंस याद है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन। फेज 2 में कौन कौन से रिएक्शंस थे, ग्लूक्रोनिडेशन, और कौन सा था, एसिटाइलेशन, मीथाइलेशन, सल्फेशन। तो ये जिन लोगों की एसिटाइलेशन सही तरीके से नहीं होती, उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है एसिटाइलेटर पॉलीमॉर्फिज्म। याद रखोगे, एसिटाइलेटर पॉलीमॉर्फिज्म, जहां पे फेज 2 रिएक्शन एसिटाइलेशन सही तरीके से नहीं होती। सो किन लोगों में एसिटाइलेशन सही तरीके से नहीं होती, कौन से ड्रग्स प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सल्फोनामाइड्स। अगर सल्फोनामाइड्स लेंगे, बिकॉज दीज आर एसिटाइलेटेड। सो सम पीपल, ध्यान से सुनना, आर स्लो एसिटाइलेटर्स, यानी कि जेनेटिकली वो एसिटाइलेशन वाला स्टेप स्लोली होता है उनकी बॉडी में। सम पीपल आर फास्ट एसिटाइलेटर्स, एसिटाइलेशन तेजी से होती है। तो जो लोग स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, उनके कई बार हम क्या करते हैं, ड्रग खाते जाते हैं ये सोच के कि असर बहुत धीरे हो रहा है, सो हम ज्यादा डोज ले लेते हैं, विच कैन बिकम टॉक्सिक। समझ रहे हो जीन्स का कॉन्सेप्ट। हॉस्टल में अगर आपने कभी बैठ के खाना खाया है, तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि कई बार दुबला पतला इंसान है और वो 6-7 परांठे खा जाता है, और वहां पर ही आप देखोगे कि कोई हेल्दी बंदा है, वो एक परांठा ही खाता है, उसकी डाइट इतनी ज्यादा नहीं है, बट उसकी जीन्स ही ऐसे हैं कि वो थोड़ा सा भारी है। So this is all about genes. Some people are slow acetylators who acetylate very slowly. Some people are fast acetylators who acetylate very fast. ठीक है। सो कौन से ड्रग्स एसिटाइलेशन में प्रॉब्लम पोज करते हैं, जिनको ध्यान से देना पड़ेगा, जिन लोगों को एसिटाइलेटर पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, सल्फोनामाइड्स, हाइड्रेलाजीन, आइसोनायाजिड एंड पास। सल्फोनामाइड्स, हाइड्रेलाजीन, आइसोनायाजिड एंड पास, PAS। ये ड्रग्स जो हैं स्लो एसिटाइलेटर्स में ध्यान से देना, क्योंकि वो स्लोली एसिटाइलेट करते हैं ड्रग को, ठीक है। सो वो जो ड्रग है वो डेंजरस लेवल्स तक अक्यूमुलेट कर सकता है बॉडी में, राइट। सो देयर मेटाबॉलिज्म इज स्लो, सो दीज ड्रग्स शुड बी गिवन विद कॉशन इन स्लो एसिटाइलेटर्स। इसको याद रखने का गुरु मंत्र क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ गुरु मंत्र, शिप। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, शिप।
सो जल्दी से बता सकते हो विच ड्रग्स शो एसिटाइलेशन और विच ड्रग शुड बी गिवन विद कॉशन इन एसिटाइलेटर पॉलीमॉर्फिज्म? Sulfonamide. Sulfonamide, वेरी गुड. hydralazine, हाइड्रोलाजिन, isoniazid, आइसोनाइजिड एंड PAS. PAC. दोस्तों ये वही ड्रग्स हैं जो लूपस एरिथ्रोमेटोसस को भी बढ़ावा देते हैं. लूपस एरिथ्रोमेटोसस क्या होता है कि इंसान के चेहरे पे और मैलार बोन में एक बटरफ्लाई रैश बन जाता है. ठीक है. तो जिन लोगों ने मुझसे प्रीवियस बैच में ओरल पैथोलॉजी पढ़ी हुई है उनको याद होगा कि ये चीक बोन पे, मैलार बोन पे और ये नोज के पास ऐसा बटरफ्लाई रैश बन जाता है लोगों में, लाल लाल सा हो जाता है. सो ये शिप ड्रग्स ही हैं जो प्री डिस्पोज करते हैं कई बार टू लूपस एरिथ्रोमेटोसिस. तो ये शिप जो है अब दो चीजों का गुरु मंत्र हो गया. एक ये गुरु मंत्र हो गया फॉर एसिटाइलेटर पॉलीमॉर्फिज्म और एक हो गया ये लूपस एरिथ्रोमेटोसिस. तो आपको याद होगा लूपस एरिथ्रोमेटोसिस में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं ब्लड वेसल्स में. आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, ब्लड वेसल्स में क्लम्पिंग हो गई. तो जब ये क्लम्पिंग हो जाती है तो बिकॉज ऑफ इंट्रैप्ड प्लेटलेट्स एंड आरबीसीज ये सारा एरिया जो है ये लाल लाल हो जाता है. और ये कब एक्सेंचुएट होता है? जब इंसान सन में जाता है. तो आपने देखा होगा कुछ लोगों का ये वाला एरिया ना अजीब सा शाइनी सा डिस्कलर्ड सा होता है, लाल लाल सा रहता है हर समय. सो ये एक कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड रिएक्शन है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है. इसका एक्चुअली तो कोई पता ही नहीं आज तक कि ट्रिगर क्या है, सडनली होना शुरू हो जाता है लोगों में. ठीक है. कौन से ड्रग्स इसको एक्सेंचुएट करते हैं जल्दी से बता दो लूपस एरिथ्रोमेटोसिस? Sulfonamide. Sulfonamide, हाइड्रोलाजिन, isoniazid, आइसोनायाजिड एंड Isoniazid. PAS. Sulfonamide. राइट. आगे चलेंगे. एसिटाइलेटर पॉलीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट इज G6PD डेफिशिएंसी. हेलो. हाँ जी, हाँ डॉक्टर. Students, what is G6PD deficiency? There are certain oxidant drugs जब जो लोगों में ये इंजाइम डेफिशिएंट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस. कुछ ऐसे दो लोग हैं दुनिया में जिनके अंदर ये G6PD इंजाइम डेफिशिएंट होता है. तो जब वो कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स लेते हैं उनके आरबीसीज हिमोलाइज करने शुरू कर जाते हैं. आ रही है बात समझ में? स्पेशली ये कौन से ड्रग से हिमोलाइसिस होता है? सल्फोनामाइड्स, सल्फा ड्रग्स. राइट. तो तभी आपने सुना होगा जब भी हम मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं या पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, बड़ी कॉमनली वो पूछते हैं आपको सल्फर ड्रग से एलर्जी तो नहीं है या आपको G6PD डेफिशिएंसी तो नहीं है. राइट. ये जितने ऑक्सीडेंट ड्रग्स हैं जैसे कि सल्फोनामाइड्स, एक एंटी मलेरियल आपने सुना होगा प्राइमाक्विन, ये सारे ड्रग्स जो हैं ये G6PD डेफिशिएंसी के केस में नहीं देने होते बिकॉज दे विल कॉज हेमोलिसिस ऑफ द आरबीसीज विच कैन बी फेटल. ठीक है. अभी आप सोच रहे होगे कि सर ऐसे ही बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, पर याद रखना बहुत जल्दी थोड़े ही टाइम में आप लोगों में से कुछ लोग जूनियर रेजिडेंसी करेंगे. करेंगे कहाँ पर करेंगे? GMCH 32 में करेंगे, PGI में करेंगे, मौलाना आजाद में करेंगे, एम्स में करेंगे. जब आप अपनी ओपीडी में बैठे होगे बहुत कॉमन सी बात है कि एक अंकल आएंगे, वो कहेंगे कुड़िए डॉक्टर साहब इस तरह है जी कि मैनू ना G6PD डेफिशिएंसी हैगी है, मैनू दवाई ध्यान नाल लिखना है ना. अब आप सोचने लग जाओगे कि यार ये G6PD डेफिशिएंसी में कौन सी दवाइयाँ नहीं देनी होती. तो क्या अंकल के सामने गूगल करते हुए अच्छा लगेगा?
It wouldn't look good, right? So you must remember the drugs which should not be given in G6PD deficiency because this is important for your exam as well. मोटा मोटा याद रखो, जितने भी सल्फोनामाइड्स होते हैं, सल्फा ड्रग्स, वो G6PD डेफिशिएंसी में नहीं देने होते. एंटी मलेरियल्स लाइक प्राइमाक्विन एंड फावाबीन्स, वो G6PD डेफिशिएंसी में नहीं देने होते. राइट, सो दीज आर ऑल द ड्रग्स. आपको ये दिख रहे हैं शुरू वाले जो ड्रग्स हैं, these are not to be given in G6PD deficiency. So most of them you can see, ये cotrimoxazole, sulfamethoxazole, these are all sulfa drugs. And I hope you can read this primaquine as well, anti-malarial. ठीक है, ये भी एक ऑक्सीडेंट ड्रग है जो G6PD डेफिशिएंसी के केस में नहीं देना होता. So please write them down or please take a screenshot. बिकॉज किसी को भी अगर G6PD डेफिशिएंसी है, हो सकता है हम में से भी कोई ऐसा इंसान हो जिसको ये डेफिशिएंसी है. अगर आपने ये ड्रग्स दे दिए तो फिर उसको बहुत सीवियर हेमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है. सो तभी एक्चुअली देखा जाए तो सल्फा ड्रग्स एक्चुअली सबसे इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स थे, तभी इनका यूज अब डिक्लाइन कर गया बिकॉज ऑफ सच रिएक्शंस. क्योंकि हजारों लाखों में से कोई एक है, उसकी शक्ल पे तो नहीं लिखा हुआ ना कि वो G6PD डेफिशिएंट है. सो जब हम देते हैं इट कैन लीड टू अ रिएक्शन. ओके, सो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, यू मस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द ड्रग्स और यू मस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल टू यू. आगे चलें, लिख लिया सभी ने? आप लोग बोर तो नहीं हुए? शुड आई एंड हेयर? जल्दी से बताओ.